نہ جانے کون کون سی رسمیں جاری تھیں، مگر ضریاب ان سب سے بیزار تھا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھی نازک مگر دلکش دلہن پر جم گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے سرخ جوڑے میں سجی ہوئی نایاب کو دیکھ کر خود کو روک نہ پایا۔ مہرون رنگ کا لہنگا اس پر بہت جچ رہا تھا۔ آخرکار نبیلہ بیگم نے ہمدردی دکھائی اور زارا سے کہا، چلو بیٹا، بھابھی کو کمرے میں چھوڑ آؤ، وہ تھک گئی ہوں گی۔ سفر بھی لمبا تھا۔ ضریاب نے خوشی سے اٹھ کر باہر قدم رکھا اور مہمان سونے کی تیاری میں لگ گئے۔ کمرہ چنبیلی اور گلاب کی خوشبو سے معطر تھا۔ زارا نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، بھابھی، مٹھائی رکھی ہے اور یہ دودھ کا گلاس امی نے کہا تھا آپ کے کمرے میں رکھوا دوں۔ نایاب نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف چھپا تھا۔ وہ اگلے لمحوں کے بارے میں پہلے ہی سے ذہنی طور پر تھک چکی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی، اس کا باپ جس نے بڑی شان سے دوسری شادی کرائی تھی۔ وہ حقیقت نہیں جانتا تھا، سچی بات صرف نایاب خود جانتی تھی، اور آج وہ راز ضریاب کے سامنے بھی آنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد ضریاب کمرے میں آیا اور نرم لہجے میں کہا، السلام علیکم۔ نایاب کا سر اور جھک گیا۔ وہ مسکرا دی، پھر مسکراہٹ ادھوری تھی۔ ضریاب نے اس کے مہندی والے ہاتھ پکڑ کر بوسہ دے دیا۔ نایاب شرم اور اضطراب سے کانپ رہی تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ضریاب خوشی سے باتیں کرنے لگا، اپنے گھر والوں کی عزت اور اس رشتے کی قدر بتاتا ہوا، مگر نایاب کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ ضریاب نے جب اس کی بے چینی دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ وہ جواب دینے میں ناکام رہی، بس چپ چاپ اپنے دل کا بوجھ سہتی رہی۔ آخرکار سر جھکاتے ہوئے بولی، نہیں، کچھ خاص نہیں۔ ضریاب نے کہا، اگر یہ لہنگا تمہیں آرام دہ نہیں لگ رہا تو بدل لو، میں انتظار کروں گا۔ وہ واش روم گئی، وہاں ٹانگے نائٹ سوٹ کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ ضریاب نے سب اہتمام خود کیا ہے۔ وہ چاہتی تو بہانہ بنا سکتی تھی، مگر اندر سے دبے ہوئے خوف کی وجہ سے چپ رہی۔ نائٹ سوٹ پہن کر وہ واپس آئی۔ ضریاب اسے پیار سے تھامے رہا، مگر نایاب کے جذبات ادھورے، دل غمزدہ تھے۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب سب کچھ سامنے آیا۔ ضریاب کا لہجہ بدل گیا، اس کی آواز میں غصہ تھا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ تم استعمال شدہ نہیں ہو، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی چیخ میں اتنا زور تھا کہ نایاب کانپ اٹھی، ڈر گئی کہ لوگ جمع ہو کر اس کی تذلیل کریں گے۔ وہ پہلے ہی کمزور طبیعت کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ روتی ہوئی بولی، میں آپ کو یہ سب پہلے بتانا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ مجھے بتانا تھا نکاح سے پہلے۔ ضریاب نے کڑوا لہجہ اختیار کیا، تمہارے گھر والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں یہ سب اپنے والد کو بتا دوں گا کہ تم نے یہ سب کھیل کھیلا ہے اور اب عزت دار بننے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ نایاب اس کے قدموں میں گر کر بڑبڑا اٹھی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اگر یہ سب فاش ہوا تو میرا باپ زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم، صرف میں جانتی ہوں۔ وہ عالم نما شخص جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے میری عزت لوٹی تھی۔ ضریاب میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اس سب میں نہ میرے بابا کا کوئی قصور ہے، نہ میرے گھر والوں کا، اور نہ ہی میرا۔ نایاب ہچکیاں لے کر روتی رہی، مگر ضریاب کے چہرے پر صرف نفرت تھی۔ وہ ایک غیرت مند کنوارا لڑکا تھا جس کے باپ گلشن علی نایاب کے والد کے پرانے دوست تھے۔ جب گلشن علی کو معلوم ہوا کہ ضریاب کی طلاق ہو گئی ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تو انہوں نے فوراً بیٹے کا رشتہ نایاب سے جوڑ دیا۔ ضریاب نے باپ کی مرضی میں خوشی خوشی ہاں کر دی، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ نایاب کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ مگر شادی کی پہلی رات ہی اس کا یہ یقین ٹوٹ گیا۔ جب اسے سچائی کا احساس ہوا تو اس کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، ادارہ طلاق دینے کا تھا۔ نایاب اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے بابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ضریاب نے اس کے جڑے ہاتھ جھٹک دیے، یہ خیال تمہیں پہلے کیوں نہ آیا؟ اگر تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی تھی تو پہلے کیوں نہ بتایا؟ تمہارا خاندان ہمیں دھوکہ دے گیا، تم ایک استعمال شدہ عورت ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔
नायाब खौफ और सदमे के बायस जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ज़रियाब के चेहरे पर सख्ती के बावजूद दिल में एक लम्हे को लर्जिश पैदा हुई। इसने गहरा सांस लिया, फिर नायाब को बाजुओं में उठाकर बेड पर लटा दिया। कुछ साल पहले की बात, जब वो एक कॉलेज से घर लौटी थी तो उसका चेहरा लाल था। सांस फूली हुई माँ घबरा कर बोली, क्या हुआ नायाब बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी, गर्मी बहुत थी, कहकर वो वॉशरूम में चली गई, मगर इसके दिल का तूफान छुपा ना था। कई दिनों से एक आदमी कार में इसका पीछा कर रहा था, कभी कॉलेज आते वक्त, कभी वापसी पर। वो इसे चुपचाप देखता, फिर गायब हो जाता। नायाब ने किसी को कुछ ना बताया, डर के मारे इस दिन इसके साथ आने वाली दोनों सहेलियां गैर हाजिर थीं। इसे मालूम था रास्ता सुनसान है, मगर टेस्ट की वजह से जाना जरूरी था। इसका बाप एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद था। मामूली सी तनख्वाह में घर का खर्च बामुश्किल चलता। माँ कपड़े सीती, नायाब घर के सारे काम संभालती। दो छोटी बहनें और एक भाई। जिंदगी सादा मगर मुतमईन थी। वो कभी अपने बाप को परेशानी में नहीं डालती थी, मगर आज दिल कांप रहा था। कॉलेज से वापसी पर जब वो सुनसान सड़क पर पहुंची तो फिर वही कार इसके पीछे आ गई। इसने कदम तेज किए, मगर दिल धड़कने लगा। बस इसे जरा दूर छोड़कर गई थी, जहां डबल दरवाजे के आगे सन्नाटा फैला रहता था। वो जगह हमेशा ही इसके लिए खौफनाक लगती थी, और तभी अचानक वो कार इसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और वो शख्स बाहर आया। वो नौजवान बिलाशुबा बहुत पुरकशिश था। सफेद शर्ट, काली पैंट और आंखों पर धूप के चश्मे। चेहरे से साफ लगता था कि पढ़ा लिखा और खुद एतमाद है। वो पुरसुकून अंदाज में बोला, काफी दिनों से मौका ढूंढ रहा था कि तुमसे दिल की बात कर सकूं। आज तो मेरी बात सुन लो। तुमने मुझे पहचाना तो होगा। नायाब चौंक कर बोली, कौन है आप और मेरा रास्ता क्यों रोका है? वो मुस्कुराकर बोला, तुम अच्छी लगती हो, इसलिए चाहता हूँ कि हम दोस्त बन जाएं। नायाब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। दोस्ती की पेशकश देने की हिम्मत कैसे हुई आपको? मेरे वालिद ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी कि मैं किसी की गुस्ताखी बर्दाश्त करूं। इसकी तेजी देखकर नौजवान लम्हा भर को चुप हुआ, फिर नर्म लहजे में कहने लगा, सिर्फ दोस्ती नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर पहले जरा जान पहचान तो हो जाए। तुम बहुत हसीन हो। नायाब ने सख्ती से कहा, बराए करम मेरे रास्ते से हट जाइए और आइंदा मेरे पीछे मत आइएगा। वो पलटी ही थी कि सामने से मोटरसाइकिल पर दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। इन्हें सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो एक ने रुककर पूछा, बेटी क्या ये शख्स तुम्हें तंग कर रहा है? नायाब ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, जी अंकल, ये कब से मेरा पीछा कर रहा है और आज तो रास्ता भी रोक लिया। ये सुनते ही दोनों आदमियों ने इस नौजवान को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। वो बचने की कोशिश करता रहा, मगर किसी ने इसकी बात ना सुनी। नायाब सख्ते में आ गई। दिल में खौफ और एहसास जुर्म दोनों भर गए। या खुदा, ये क्या हो गया? वो कांपते कदमों से वहां से भाग गई। घर पहुंचते पहुंचते इसका रंग जर्द पड़ चुका था। अगले दिन बुखार ने इसे नढाल कर दिया। कई दिन वो कॉलेज ना जा सकी। अब्बू ने आखिरकार पूछ ही लिया, बेटा इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही? नायाब ने निगाहें चुराते हुए कहा, अब्बू गर्मी बहुत लगती है, तबीयत ठीक नहीं रहती। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर ग्रेजुएशन के पेपर जरूर देना, ये बहुत जरूरी है। वो खामोशी से सर हिला गई। इस वाक़े का जिक्र इसने किसी से ना किया, ना अब्बू से, ना अम्मी से। कुछ दिन बाद एक शाम अब्बू की आवाज ऐसे कमरे तक सुनाई दी। वो अम्मी से कह रहे थे, नायाब के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरा पुराना दोस्त मिला है, इसका बेटा बैंक में काम करता है। अम्मी ने हैरत से पूछा, वाकई? अब्बू बोले, हाँ, किस्मत से अच्छा रिश्ता मिला है। एक हफ्ते बाद वो लोग नायाब को देखने आए। नायाब अपनी सादगी और खूबसूरती में निराली लग रही थी। गोरा रंग, काली आंखें, शर्मीला अंदाज। असफंद के घर वाले इसे देखकर मुतमईन दिखाई दिए। अब्बू बोले, पेपर खत्म होंगे तो शादी कर देंगे, मगर खालिद साहब, लड़के के वालिद ने फौरन कहा, शादी बाद में सही, अभी निकाह कर देते हैं। अम्मी और अब्बू दोनों हैरान रह गए। वो बराह रास्त निकाह की बात कर रहे थे। अब्बू ने जरा तौकफ के बाद कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लड़के का नाम असफन था। अब्बू ने पहले से देखा हुआ था, मगर अम्मी नहीं जानती थी।
अगले रोज अम्मी के साथ छोटी बहन मीरब भी अब्बू के साथ लड़के को देखने चली गई। वो लौट कर आई तो इसके सामने असफन की तारीफों के पुल बांध रही थी। असफन भाई तो बहुत नेक और हैंडसम है, तुम वाकई खुशनसीब हो। इनका घर तो महल जैसा है, ऊपर से अपनी गाड़ी भी रखते हैं। अभी नायाब के पेपर्स में 5 महीने बाकी थे, मगर असफन के घर वालों के इसरार पर निकाह की तारीख तय हो गई। अजीब बात यह थी कि नायाब ने अभी तक असफन को देखा तक नहीं था। सादा सी छोटी सी तकरीब रखी गई। वो लाल जोड़ा पहने दुल्हन बनी बैठी थी। निकाह के दिन मीरब ने जिद की कि एक झलक देख लो। जैसे इसने खिड़की से बाहर झांका, इसके कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो वही शख्स था, वही जो कभी इसका रास्ता रोका करता था। वो खौफजदा हो गई। दिल चीख उठा, या अल्लाह, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो। खुशी की जगह दिल में अजीब सा डर उतर आया। मीरब हैरान थी। क्या हुआ आपी? असफन भाई अच्छे नहीं लगे। देखें कितने स्मार्ट हैं, आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे भूत देख लिया हो। नायाब चुप रही, जैसे जुबान ही बंद हो गई हो। निकाह के बाद जब असफन इजाजत लेकर कमरे में आया तो नायाब के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो नरमी से बात करने लगा। तुमने मुझे ठुकरा दिया था, मगर किस्मत ने फिर भी हमें मिला दिया। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। मैंने खुद तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा क्योंकि तुम मुझे सच में पसंद थी। ये सुनकर नायाब का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। दिल को सुकून सा मिला। असफन ने इसका हाथ थामकर पेशानी चूमी और कहा, अब तुम मेरी हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। निकाह की तकरीब खत्म हुई, सब लोग चले गए। रात को पड़े बैठी तो फिर हर सफ़े के बीच असफन का चेहरा झलकने लगा। वाकई अब वो इसे बहुत हसीन लगने लगा था। अगले दिन अब्बू ने नरमी से पूछा, बेटा मैंने तुमसे पूछा नहीं, मगर तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? नायाब ने शर्मा कर कहा, अब्बू आपका फैसला मेरे लिए हमेशा बेहतर होता है। ये सुनते ही अब्बू के चेहरे पर इत्मीनान छा गया। फिर वो पढ़ाई में दिल न लगा सकी। हर वक्त असफन के ख्यालों में रहती। कॉलेज बस पेपर्स की तैयारी के लिए जाती, बाकी वक्त घर में गुजरता। अम्मी अब्बू खुश थे कि बेटी की जिंदगी खुशियों से भर गई है। एक दिन मीरब के हाथ असफन ने मोबाइल भिजवाया ताकि वो बात कर सके। नायाब हिचकिचाई, ऐसे मुनासिब न लगा कि रुखसती से पहले बात करे, मगर अम्मी के कहने पर कभी कभार वो बात कर लेती। असफन की बातों में मोहब्बत, तारीफ और इंतजार झलकता। वो बैंक में मुलाजिम था, 3 बहनों का इकलौता और लाडला भाई। नायाब इसके दिल की पसंद थी और मुस्तकबिल रोशन लगने लगा था। इन दिनों वो बहुत खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन मामू की बेटी की शादी थी। सब जाने की तैयारी में लगे थे। अम्मी बोली, रेहान को यहीं रहने दो, नायाब अकेली कैसे रहेगी घर पर। रेहान ने जिद की, मैं भी शादी पर जाऊंगा। वैसे भी इसे ऐसी तकरीबात का बड़ा शौक था। नायाब ने नरमी से कहा, अम्मी रहने दे, मैं अकेली रह लूंगी। वैसे भी आप लोग 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। छोटी की जिद देखकर अम्मी अब्बू ने इसे घर पर अकेला छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। रिश्तेदारों की शादी थी, जाना जरूरी था। सब निकल गए तो घर में खामोशी छा गई। नायाब ने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, किताब खोली, मगर दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मोबाइल उठाया तो असफन का मैसेज मौजूद था। क्या कर रही हो? इसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस फ्री हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मैसेज आया, दिल चाह रहा है तुमसे मिलने का, आ जाऊं? वो चौंक गई, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं अकेली हूँ घर पर। असफन ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो। फिर वो ऑफलाइन हो गया। नायाब के दिल में घबराहट छा गई। क्या वो सच में आ जाएगा? नहीं, शायद मजाक कर रहा हो। वो खुद को तसल्ली देकर लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी अब्बू इतनी जल्दी आ गए? वो बड़बड़ाई। दरवाजा खोला तो सामने असफन खड़ा था। वो सकते में आ गई। असफन ने नाराजगी से कहा, तुम ऐसे चौंक रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। निकाह हो चुका है हमारा। नायाब घबरा कर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अंदर आइए। वो अंदर आया, वही कमरा जहां वो और मीरब रहती थी। नायाब की धड़कन तेज थी। असफन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसने जेब से एक छोटी सी गोल्ड रिंग निकाली। इजाजत दो, पहना दूं।
नायाब ने खामोशी से हाथ आगे कर दिया। अंगूठी पहनाने के बाद असफन ने इसकी आंखों में देखा। अंगूठी पहनाते पहनाते असफन ने अचानक ही इसे अपनी तरफ खींच लिया। कसम से यार, 1 मिनट भी गुजारा नहीं होता। कितना तड़प रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं। वो इसके कान में सरगोशी करने लगा। नायाब की घबराहट अरूज पर थी। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे छोड़ दें, अभी रुखसती नहीं हुई है मेरी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रुखसती नहीं हुई तो क्या हुआ? हमारे दरमियान निकाह जैसा मजबूत रिश्ता है। मैं सारे फासले खत्म करना चाहता हूँ। फिर 2 महीने बाद वैसे ही तुम्हें रुखसत होकर मेरे पास आ जाना है। प्लीज आज मेरी इन बेकरारियों को खत्म कर दो। वो इसे अपने बाजू में दबोच चुका था। वो बुरी तरह किस्मत आ रही थी। असफंद इसके चेहरे पर गुस्ताखियां कर रहा था। और फिर कहते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है, और वो शैतान असफंद पर हावी हो चुका था। लाख नायाब ने इसकी मिन्नतें की, लेकिन वो माना ही नहीं और इससे अपना हक वसूल करके ही हटा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रात की तन्हाई और इसे अकेला देखकर वो इस पर किस कदर हावी हो जाएगा। नया फौरन ही वॉशरूम में चली गई थी। काफी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद वो उठा और कहने लगा, चलो मैं चलता हूँ। तुम परेशान ना होना, बस जल्दी से वो दिन आ जाए जब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। असम के जाने के बाद नायाब के आंसू बहने लगे। ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ हुआ वो खुशी थी या खौफ। बस एक एहसास दिल में गूंज रहा था कि मोहब्बत अगर वक्त से पहले आजमाई जाए तो दिल पर बोझ बन जाती है। नायाब खामोश बैठी थी, लेकिन इसके अंदर तूफान बरपा था। असफन जाते हुए कह गया था, बस याद रखना ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, न अपने घर वालों से कहना, न किसी दोस्त से। ऐसी बातों में इज्जत का मामला होता है और तुम जानती हो इज्जत कितनी नाजुक चीज है। वो कहता हुआ गया। मैं जल्दी वापस आऊंगा दुल्हा बनकर तुम्हें लेने। वो दरवाजे से निकल गया और नायाब जैसे पत्थर बन गई। होश आया तो दरवाजा बंद करने दौड़ी, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था। दिल के अंदर खौफ और पछतावे का अजीब सा बोझ उतर आया। वक्त गुजरता गया। 2 महीने यूं ही बीत गए। इसने सब कुछ दिल के किसी अंधेरे गोशे में दफन कर दिया। कभी कभार असफन से बात हो जाती, मगर फिर अचानक इसका नंबर बंद आने लगा। मैसेज भेजे तो कोई जवाब नहीं, कॉल की तो फोन बंद। इसने किसी को कुछ ना बताया, मगर एक दिन किचन से अम्मी अब्बू की गुफ्तगू सुन ली। अम्मी कह रही थी, नायाब के पेपर खत्म हो गए, अब तो रुखसती का वक्त है। 2 महीने कहे थे, मगर इनकी तरफ से कोई बात ही नहीं हो रही। मैंने जहेज का सामान भी तैयार कर लिया है, आखिर कब तक इंतजार करें। अबू ने आहिस्ता कहा, मैं खुद असफन के वालिद से बात करता हूँ। 2-3 हफ्तों बाद वो खुद गए। असफन के वालिद की आंखों में शर्मिंदगी थी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा जिद पर अड़ गया है। इसने ये रिश्ता करवाया था, मगर अब कहता है कि इससे गलती हो गई और वो तलाक देना चाहता है। नायाब के वालिद सख्ते में आ गए। क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी का क्या कसूर है? असफन के वालिद सर झुकाकर बोले, मैं और मेरी बीवी इसे समझाते रहे, मगर वो नहीं मानता। कहता है नायाब का किरदार ठीक नहीं। हमने लाख यकीन दिलाया कि वो ऐसी नहीं, मगर वो अपनी बात पर कायम है। अगर जबरदस्ती की तो कहता है घर छोड़ देगा। नायाब के वालिद के लब खामोश थे, मगर आंखों में तूफान था। इन्होंने कहा, मैं समझ गया, आपकी मजबूरी है। फिर वो उठे और भारी कदमों से घर लौट आए। घर पहुंचकर इन्होंने बीवी को सब कुछ बताया। अम्मी के आंसू थम नहीं रहे थे। क्या बिगाड़ा था हमारी बेटी ने? क्यों इल्जाम लगा दिया इसके किरदार पर? क्या इसलिए कि वो खामोश रही? इन्हें नहीं मालूम था कि नायाब इनकी बातें सुन रही है। इसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असफन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मोबाइल की तरफ लपकी, मगर नंबर अब भी बंद जा रहा था। दूसरे दिन जब अम्मी ने इसे देखा तो आंखें सूजी हुई थी। क्या हुआ नायाब, रोई हो क्या? वो नजरें चुरा कर बोली, कुछ नहीं अम्मी। अम्मी आहिस्तगी से बोली, बेटा तुम्हारे अब्बू अभी बात कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। मायूस मत होना बेटा। वो जानती थी कि नायाब सब कुछ सुन चुकी है, मगर 1 महीना गुजरने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं आई। असफर ने साफ कह दिया था कि अब वो नायाब से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता।
जिद पर अड़ा हुआ था कि इसे तलाक देकर ही दम लेगा। चूंकि वो इकलौता और लाडला बेटा था, घर वाले भी कुछ कहने की हिम्मत न कर सके। आखिरकार असवंत के वालिद को मजबूरन इसके कहने पर तलाकनामा भेजना पड़ा। इत्तेफाक से इस दिन अब्बू घर पर ही थे। जब इनके हाथ में तलाकनामा आया तो नायाब पर जिससे कयामत टूट पड़ी। वो बेयकीनी से इसे देखती रह गई। असवंत, जिसने कभी मोहब्बत के दावे किए थे, आज इसे इस तरह छोड़ गया। मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी और फरेब था। सब कुछ इसके हाथ कांपने लगे और इसी झटके में इसने मोबाइल उठाकर असवंत का नंबर मिला दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम जालिम हो, शैतान, वो रोते हुए बोली। असवंत दूसरी तरफ हंसा, एक जहरीली हंसी के साथ। भूल गई तुम नायाब मैडम, तुमने मेरी तौहीन की थी, 2 लोगों के सामने मुझे पिटवाया था। मैं तुम्हें पसंद करता था, दोस्ती चाहता था, मगर तुमने मुझे जलील कर दिया। आज मैंने वही बदला पूरा कर लिया है, तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, तुम्हें तलाक देकर मैंने अपना बदला ले लिया। वो कहका लगाकर बोला, अब दोबारा राब्ता मत करना। और हाँ, वो रात भूल नहीं सकता, बड़ा मजा आया था। असफन के ये अल्फाज नायाब के दिल में तीर बनकर लगे। वो साकित रह गई। सिर्फ अल्लाह का करम था कि इन गुजरे लम्हों के कोई संगीन असरात नहीं हुए। अगर वो हामला हो जाती तो शायद किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। वो टूट कर रह गई थी। कई दिन सोग में डूबी रही। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई थी। लोग जयमगोइयां कर रहे थे और इल्जाम हमेशा की तरह लड़की पर आ रहा था। इसके वालिद का दिल टूट गया था। एक दिन अपने पुराने दोस्त गुलशन से दुख बांटा तो वो मुस्कुरा कर बोला, भाई इतनी फिक्र क्यों करते हो? अभी रुखसती नहीं हुई थी। तुम्हारी बेटी अब भी एक पाक दामन लड़की है। इससे अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा। क्या कह रहे हो गुलशन? नायाब के वालिद की आवाज भर आ गई। मेरी बेटी तलाक याफ्ता है, दुनिया इसे कबूल नहीं करेगी। गुलशन ने तसल्ली दी, परेशान ना हो, अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे जरियाब के लिए मांग लो। मैं वैसे भी इसके लिए लड़की ढूंढ रहा था। ये सुनकर इसकी आंखों में यकीन और शुक्र के आंसू आ गए। जरियाब एक सुलझा हुआ, तालीम याफ्ता और खुशहाल लड़का था, अपने कारोबार का मालिक। जैसे वो घर पहुंचे तो बीवी से कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने एक दर बंद किया तो दूसरा खोल दिया। गुलशन ने अपनी खुशी से नायाब का रिश्ता अपने बेटे जरियाब के लिए मांगा। नायाब के दिल में जैसे इत्मीनान उतर आया। अब मैं इन जालिमों को दिखाऊंगा कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं। वो पुरजोश लहजे में बोले, मेरी बेटी पाक दामन है। इन मकार लोगों ने बिला वजह इसे बदनाम किया। चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी लौट आई थी। बीवी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, लेकिन क्या आपने गुलशन भाई को सच बता दिया है कि निकाह तो हो चुका था मगर रुखसती नहीं हुई? वो मुस्कुरा दिए, हाँ हाँ, गुलशन को सब मालूम है, वो मेरा दोस्त है। अगर इसे नहीं पता होगा तो और किससे होगा? मेरी बेटी फरिश्ता सिफ्त है। इनके अल्फाज सुनकर नायाब के कदमों तले जमीन निकल गई। वो जानती थी कि हकीकत इसके बाप के तसव्वुर से कई ज्यादा तल्ख थी। असफन जैसा अयार इंसान सिर्फ इंतकाम के लिए इसकी इज्जत पामाल कर गया था। वो इसे चुप रहने का कह चुका था और वो खौफ के मारे हमेशा खामोश रही। अब जब इसके बाप ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो पाक है तो नायाब के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। अगर कभी जरियाब को सच्चाई मालूम हो गई तो वो भी शायद इसे फौरन छोड़ देगा। इसे लगता था कि काश जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। कई बार दिल चाहा कि जिंदगी ही खत्म कर दे, मगर वालिदैन की इज्जत की खातिर चुप रही। दिनों में इसकी हालत बिगड़ गई, चेहरे की रौनक मांद पड़ गई। अम्मी हर रोज तसल्ली देती, बेटा फिक्र ना करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है, खुश रहने की कोशिश करो। नायाब जबरदस्ती मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर खौफ पल रहा था। बिलाखिर शादी का दिन आ गया। वो दुल्हन बनी तो सब हैरान रह गए। हर कोई तारीफ कर रहा था। मीरब ने आकर जरियाब को देखा और खुशी से बोली, वो तो बहुत ही हैंडसम है, आप दोनों की जोड़ी जबरदस्त लग रही है। सब खुश थे, मगर नायाब की आंखें अश्कों से भरी थीं। रुखसती के बाद वो अपने नए घर पहुंच गई, मगर सुहागरात ही इसके लिए इम्तिहान बन गई। जरियाब ने जैसे इसके करीब होने की कोशिश की, सच्चाई इस पर आश्कार हो गई। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि नायाब पहले किसी ताल्लुक में रह चुकी है।
दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। वो चाहता था सबके सामने इससे तलाक दे दे, मगर जब देखा कि नायाब बेहोश पड़ी है तो खामोश रह गया। काफी देर बाद नायाब को होश आया। वो नीम बेहोशी में बस यही दोहरा रही थी, ज़रियाब मुझे तलाक मत देना, मेरे अब्बू मर जाएंगे। इसकी आवाज में खौफ और दुख दोनों शामिल थे। ज़रियाब चुपचाप सुनता रहा, जैसे हर लफ्ज इसके दिल पर नक्श हो रहा हो। वो रात इन दोनों पर भारी गुजरी। सुबह जब सास कमरे में दाखिल हुई तो नायाब का चेहरा जर्द और बुखार से जलता हुआ था। अल्लाह खैर, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या ज़रियाब ने कुछ कहा है? वो परेशान होकर इसके पास बैठ गई। नायाब खामोशी से छत को देखती रही। चेहरे पर बेहिस्सी और आंखों में खालीपन था। कुछ देर बाद सबने कमरा खाली कर दिया। ज़रियाब जैसे ही अंदर आया, माँ फिक्रमंद लहजे में बोली, रात वलीमा है और नायाब को देखो, तेज बुखार में जल रही है। लगता है इससे खुद का भी होश नहीं। आखिर हुआ क्या है? ज़रियाब ने लब सख्ती से भींच लिए। दिल में गुस्सा था, इस लड़की पर भी और इसके घर वालों पर भी, जिन्होंने सच छुपाकर इसे धोखा दिया। मगर माँ के सामने कुछ ना कह सका, सिर्फ इतना बोला, कुछ नहीं अम्मी, दवाई दे दें, ठीक हो जाएगी। लेकिन सुबह दोपहर में बदली, फिर शाम ढली और बुखार कम ना हुआ। वो नीम बेहोशी में पड़ी थी। मजबूरन ज़रियाब ने घर पर डॉक्टर बुला लिया। डॉक्टर ने तशवीश से कहा, ये सदमे में है, दिमाग पर बहुत दबाव है, अगर टेंशन दूर ना की गई तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। ये सुनकर घर वालों के रंग उड़ गए। ज़रियाब सब जानता था मगर खामोश रहा। नायाब डर रही थी कि कहीं ज़रियाब सबको हकीकत ना बता दे। तब इसकी माँ ने नरम लहजे में कहा, बेटा अपनी बीवी का खास ख्याल रखना, वो पहले ही एक जख्म खा चुकी है। इसके वालिद ने हमारे बुरे वक्त में बहुत मदद की थी, याद है ना? जब तुम्हारे अब्बा ने कारोबार शुरू किया था तो इन्हीं के चंद हजार रुपए से इब्तिदा हुई थी। आज जो हम खुशहाल हैं वो इन्हीं की बदौलत है। अम्मी की बातें सुनकर ज़रियाब ने मसनूई मुस्कुराहट से सर हिला दिया। दिल में तूफान था मगर जुबान बंद रही। नायाब की हालत देखकर वलीमा मंसूख कर दिया गया। इधर नायाब के वालिदैन भी इसके बुखार से परेशान थे। वो दवाइयां देकर वापस चले गए और नायाब नींद आवर दवाई के असर में डूब गई। आधी रात के वक्त वो नींद में बड़बड़ाने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं था, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना, अब्बू की इज्जत मत बर्बाद करना। ज़रियाब का दिल दहल गया। इसने आहिस्ता से इसके हाथ थाम लिए। होश में आओ नायाब, मैं तुम्हारा राज किसी से नहीं कहूंगा, न तुम्हें छोड़ूंगा। खुदा ने तुम्हें ढांप लिया है तो मैं भी तुम्हारा भरम रखूंगा। वो मध्यम आवाज में बातें कर रहा था मगर शायद नायाब को सुनाई न दे रहा था। फिर भी इन लम्हों में कुछ बदल गया। ज़रियाब के दिल में नरम एहसास जागा। अब वो समझ चुका था कि पहली रात नायाब इतनी खौफजदा क्यों थी। अगली सुबह इसकी हालत कुछ बेहतर हुई। वो खामोशी से बैठी थी, हल्का गुलाबी लिबास पहने। सास ने इसके सर पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है बेटी, कोई परेशानी है? नायाब ने नफी में सर हिलाया। तभी ज़रियाब अंदर आया और बोला, अम्मी आप इनके लिए सूप ले आए, पिएगी तो कुछ आराम मिलेगा। इसके लहजे की नरमी पर नायाब चौंक गई, जैसे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग गई हो। वो खामोशी से इसके सामने आकर बैठ गया। नायाब की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो बस इसे देखती रही। ज़रियाब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र ना करो, ये समझ लो कि वो राज कभी मेरे सामने आया ही नहीं। मैंने इस पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया है। तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नायाब को यकीन नहीं आ रहा था। अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ी और ज़रियाब के सीने से लग गई। मैं हमेशा आपकी खिदमत करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बुरी औरत नहीं हूँ, लेकिन इस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा, वादा किया कि जल्द रुखसती करेगा, मगर फिर तलाक का पैगाम भेज दिया। वो रो रो कर सब कुछ बता रही थी। ज़रियाब ने नरमी से इसके होंठों पर उंगली रख दी। बस
اب ایک لفظ بھی نہیں، آج کے بعد اس بات کا ذکر نہ تم کرو گی نہ میں، یہ سچ تم اور خدا جانتے ہو، میں نے اسے اپنے دل میں دفن کر لیا ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، نایاب کی آنکھوں میں اس کے لیے شکر گزاری اور محبت چھلک رہی تھی۔ زریاب نے اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا اور وہ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر حیران تھی۔ 2 دن میں نایاب کی طبیعت سنبھل گئی، سب کے درمیان بیٹھی تھی جب زریاب کی والدہ نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا اب بخار کب اترے گا؟ رشتہ دار ولیمے کے منتظر ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ شرما گئی اور زریاب نے بھی مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ زریاب کی ماں بولی، میرا خیال ہے ولیمہ کل رات رکھ لیتے ہیں، مگر سادگی میں ہی برکت ہے۔ سب نے حامی بھری۔ اگلی شام نایاب جب تیار ہو کر آئی تو کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ اس کا دل بار بار زریاب کی طرف جا رہا تھا، وہ مرد جو اس کے راز کو دل میں دفن کر چکا تھا اور اس کی عزت بچا لی تھی۔ ولیمے میں قریبی رشتہ دار ہی شریک ہوئے، ماں باپ بھی آئے جن کی آنکھوں میں بیٹی کی خوشی دیکھ کر زندگی لوٹ آئی تھی۔ اگر زریاب کا دل اتنا بڑا نہ ہوتا تو شاید آج کہانی کچھ اور ہوتی۔ نایاب اگر طلاق کے داغ کے ساتھ واپس چلی جاتی تو اس کا باپ صدمے سے بستر سے لگ جاتا۔ اب وہ میکے آئی تھی، سب سے ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ کمرے میں گئی تو والد آئے، بیٹی خوش تو ہونا؟ کیوں نہیں ابو، زریاب بہت اچھے ہیں، میری سوچ سے بھی زیادہ، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ باپ نے مسکرا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، جس نے تمہیں تکلیف دی آج وہ خود سزا بھگت رہا ہے۔ نایاب چونکی، کیا آپ اسفند کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، وہی مکار انسان، اس کے باپ نے کل مجھ سے معافی مانگی، مگر میں نے کہا معافی تمہیں مل سکتی ہے مگر تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو جو دکھ دیا ہے وہ نہیں بھول سکتا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نایاب پھر سے رو دی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، رو مت میری بچی، خدا کی عدالت سب کے لیے برابر ہے اور آج ہمیں انصاف مل گیا ہے۔ نایاب نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ابو؟ وہ مسکرا کر بولے، اسفند جیل میں ہے۔ اسفند نے ایک دولت مند والدین کی بیٹی سے شادی کی تھی، ایک دن غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھا دیا تو لڑکی نے اپنے باپ کے کہنے پر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بیوی پر تشدد کے مقدمے میں جیل کاٹ رہا ہے۔ یہ سب سن کر نایاب کے چہرے پر کوئی رد عمل نہ آیا، جیسے دل کے کسی کونے میں کہہ رہی ہو، جو انجام ملا وہی درست تھا۔